Hello and welcome. Welcome to a new chapter in Science 1, which is chapter number 5 called Heat, and this is our first learning session. So, before we start any new chapter, we first see what is so special about this chapter, right? Why should we study this chapter? What is so interesting about this chapter? Okay, so I'm going to talk about four applications, and through those four applications, you'll understand what is so important and what is so interesting about this chapter. Okay, so the first application is your body itself. So, your body cannot function normally at any temperature. There is a temperature range in which it can function normally, right? But the temperature around us that is going to keep changing. In the winters, the temperature is much lower than the temperature range in which human body can function normally, and in the summertime, the temperature is much higher in our surroundings than our normal temperature. So our body knows the concept of heat and heat transfer, and hence it is able to maintain its temperature. If it is too cold outside, our body is going to use energy in our body to maintain its temperature. If it is too hot outside, our body is going to start sweating so that it can lower the body's temperature. So our body has a very good understanding of heat and heat transfer. The second application is mobiles or computers. Okay, so say for example you're an engineer who is going to design a computer or a mobile. So um, what is one of the important things in any mobile or any laptop or any computer? That would be the chip you have, right? So if you use a more powerful chip, you'll be able to see videos much more clearer. You can have a 4K display, you can have an HDR display. All those things you can do if you have a very powerful chip. Or you can play very graphic intensive games. For example, PUBG. अगर तुम बहुत महंगे मोबाइल पे खेलोगे जिसमें बहुत अच्छा वाला चिप है, it will run much more smoother without any lag, right? So if as an engineer you will always try to keep the chip inside the mobile as powerful as possible, but the problem with that is the higher end the chip you put in your mobile or in your computer, the more power it is going to consume, and the more power it will consume, the more heat is going to be produced. तो जितना अच्छा चिप लगाओगे तुम मोबाइल या कंप्यूटर में, उतना अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा. ओके, so whenever you watch video for a long time in your mobile, or whenever you play games in your mobile or your computer for a long time, you must have noticed that it starts getting heated up. And with respect to laptops and computers, they have a fan. तो बहुत टाइम तुम यूज करोगे लैपटॉप को, तो एक आवाज काफी लाउड हो जाएगा. वो फैन का होता है, अंदर एक फैन होता है. Why do you need fan inside a computer? It's because the chip is using a lot of power, and because of that power, a lot of heat is being produced. तो फिर उससे डैमेज हो सकता है पूरा कंप्यूटर, पूरा चिपसेट. सो उसको ठंडा करना पड़ता है. सो यू हैव टू पुट कूलिंग सिस्टम्स. हाई एंड कंप्यूटर्स में देयर विल लिक्विड कूलिंग सिस्टम. सो एक्चुअली पानी फ्लो करेगा तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर सो दैट एवरीथिंग इज कूल्ड. कहाँ पे फैन लगाना चाहिए, कितना पावरफुल फैन लगाना चाहिए, कितनी हवा अंदर जानी चाहिए, all that you have to take into consideration while designing a computer or a mobile phone. Okay, that's the second, oh no, that's the third, no, that's the second application of heat and heat transfer. A person who is designing mobiles and computers, he or she has to keep in mind कि cooling system कैसा होगा. For that, they need to know heat and heat transfer very well. Third application actually we have seen previously in our grade 9. Okay, so it's about rail tracks. So rail tracks are made up of steel columns. Steel columns को एक के सामने एक बनाएंगे, और स्टील और वो रेल की पटरी बन जाएंगी, और बीच बीच में तुम वुडन प्लैंक्स डाल दोगे. तो एक जो लंबा वाला कॉलम होता है वो स्टील के कॉलम्स होते हैं, राइट? स्टील के कॉलम्स एक के आगे एक लगाते जाओगे. सो आई थिंक आई टोल्ड यू दिस इन द अर्लियर ग्रेड एज वेल. सो दो स्टील के कॉलम्स के बीच में, फिर दो स्टील के टुकड़ों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देते हो, ऐसा चिपका हुआ नहीं होता. यू कैन इवन सी दैट इन मुंबई लोकल ट्रेन और इवन इंटर स्टेट पैन कंट्री ट्रेन के रेल ट्रैक्स. ओके, सो दो स्टील के कॉलम्स के बीच में, दो स्टील के पार्ट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे. ओके, व्हाई इज दैट? बिकॉज दे नो कि बिकॉज ऑफ हीट मेटल्स एक्सपैंड. ओके, सो अगर समझो तुमने ठंडी के मौसम में तुमने वो रेल ट्रैक बिछा दिया और एकदम से चिपका के रख दिया, तो गर्मी में वो क्या होने वाला है? एक्सपैंड होने वाला है. गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जब भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मेटल्स एक्सपैंड, राइट? सो एक्सपैंड होने लग जाएंगे. अभी एक्सपैंड होने के लिए जगह है ही नहीं, तो टेढ़े हो जाएंगे, राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा. अगर ऐसा हो गया और उस पे से ट्रेन चली गई तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? सो व्हाट दे विल डू इज, अगर ठंडी में वो लोग रेल ट्रैक्स बिछा रहे हैं, दे विल पुट लाइक दिस सो दैट इन द समर टाइम दे विल एक्सपैंड, एंड वो लोग फिर बाद में जुड़ जाएंगे. फिर विंटर में वापस दूर आ जाएंगे, वापस समर में जुड़ जाएंगे. तो ऐसे होते रहेगा.
So people putting the railway track, they also have to keep in mind heat and heat transfer concepts. And last, I want to make, it's not an application, I want to make a connection to our science 2 chapter towards green energy, in which we had seen coal power plants and nuclear power plants, right? So just try to recall the diagrams for coal power plants and nuclear power plants. They have dedicated cooling systems, right? ऐसा एक पाइप जाएगा जो जिसमें से पानी जाएगा, राइट? पानी फिर बाद में कूलिंग सिस्टम में जाता है, वापस थर्मल प्लांट में जाता है और वैसा सर्कुलेट होते रहता है, राइट? सो व्हाई डू यू नीड कूलिंग सिस्टम्स अगेन टू मैनेज हीट वेरी वेल? अगर हीट को तुमने मैनेज नहीं किया, there could be an explosion, there could be destruction of the equipment you have. कौन से मटेरियल यूज करने हैं, पानी कौन से टाइप का यूज करना है, कितना ज्यादा पानी होना चाहिए, all that you have to consider, if all that you can consider well only if you have a very good conceptual understanding of heat and heat transfer. Okay, so these are not all the applications of this chapter and this concept, but these are a few applications, and I hope this tells you how important this chapter is and how this can become interesting. Okay, there are also a few more applications which we're going to learn throughout the chapter. In between, there are small applications, so I haven't included those um, in this slide, right? So we'll see those applications as well as we move ahead in the chapter. Okay, so these are the reasons why we should study this chapter. Okay, let's move ahead. So these are the topics we're going to cover today. Okay, we'll see latent heat, and within latent heat, inside latent heat, we'll see specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. These will be the objectives for today. First, students will be able to recall terms and concepts related to the chapter learnt in the previous grade. इस chapter से related जो कुछ भी तुमने पहले पढ़ा है उसको तुम्हें वापस याद करने आना चाहिए. For example, temperature क्या होता है, heat क्या होता है, all that we'll revise quickly. Students will be able to recall definition and explain latent heat, specific heat, heat of fusion, specific latent heat of vaporization. Okay, तो इन सब के definitions तुम्हें पता होने चाहिए और उनको explain करने आना चाहिए. And the most important objective for the day would be students will be able to explain temperature versus time graph. During our learning session, we'll see a temperature versus time graph. उसको तुम्हें explain करने आना चाहिए. That's the most important part of this learning session. Okay. So let us begin with can you recall type of questions on page number 62 of Science 1 textbook. Okay. What is the difference between heat and temperature? What are the different ways in which heat can be transferred? Okay. So very simple questions. I think most of y'all must remember this from our previous grades. So I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the answers by yourself. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and were able to write at least something as answers to these questions. Now let us discuss the answers. So the first question is difference between heat and temperature. So what is temperature? Degree of hotness. Degree of hotness of a body is called as temperature. कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कोई भी चीज कितनी ठंडी है वो टेम्परेचर से पता चलेगा. ओके, इफ आई टेल यू कि ये जो बॉटल है मेरे हाथ में ये बहुत ज्यादा ठंडी है, सो कितनी ठंडी है मुझे कैसे पता चलेगा? तो आई पुट अ थर्मोमीटर हियर, आई सी इट्स टेम्परेचर. उस टेम्परेचर से मुझे पता चलेगा कितना ठंडा है. 10 डिग्रीज है तो मैं बोलूंगा हाँ काफी ठंडा है. -10 डिग्रीज है तो बहुत ही ठंडा है. -100 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत 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 ज्यादा ठंडा, राइट? सो कितना ठंडा या फिर कितना गर्म है? 50 डिग्री गर्म है, 100 डिग्री गर्म है, 1000 डिग्रीज गर्म है, कितना गर्म है? ये हमें किससे पता चलेगा? टेम्परेचर इज नंबर से. ओके, सो व्हाट इज टेम्परेचर? कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो जो नंबर बताएगा उसको, उस नंबर को हम टेम्परेचर बोलेंगे. ओके, देन व्हाट इज हीट? So the flow of heat energy from one body to another due to temperature difference between the two is called as heat. Heat क्या है? Firstly, it's a form of energy. Okay, heat क्या है? एक form of energy है. तो ये form of energy कब flow करेगी? When there is a temperature difference, right? Whenever there is temperature difference. Say for example, my mobile is at 10 degrees Celsius and my water bottle is at say 50 degrees Celsius. ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 50 डिग्री सेल्सियस में, ये दोनों को साथ में लेके आऊंगा तो कौन सा ज्यादा गर्म है? माई बॉटल इज मोर वार्म. मेरा बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा है, सो टेम्परेचर में से हीट मेरे मोबाइल में जाना शुरू हो जाएगा. सो
दैट इज कॉल्ड एज हीट। वो जो फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर अलग है, उस एनर्जी को हम हीट बोलेंगे। ओके, सो कोई भी चीज कितनी गर्म या ठंडी है वो टेम्परेचर से मिलेगा, और कोई भी दो चीजें जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसमें जो एनर्जी फ्लो होगी उसको हम हीट बोलेंगे या फिर हीट एनर्जी बोलेंगे। ओके, दैट इज हीट एंड दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट एनर्जी फ्लो कर सकती है। सो फर्स्ट इज कंडक्शन। ओके, सो कंडक्शन इज व्हाट, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस। So again, let me bring out my bottle over here. So if this is my water bottle and I'm holding it here, और यहाँ पे मैंने उसको burn करना शुरू किया. Okay, I start burning my water bottle over here. So if I start burning my water bottle over here, heat energy is being absorbed over here. वो हीट एनर्जी पास होते होते मेरे हाथ तक आ जाएगी, तो मेरा हाथ जलने लगेगा। सो क्या हो रहा था इसमें, मैंने पुट माई बर्नर ओवर हियर, आई स्टार्ट हीटिंग इट ओवर हियर। हीट एनर्जी कहां से फ्लो हुई, इस एंड से लेके इस एंड तक फ्लो हो गई, उसको बोलेंगे कंडक्शन। एक सब्सटेंस के अंदर से, एक मटेरियल के अंदर से जब पास होता है हीट, तब उसको बोलेंगे कंडक्शन। ओके, सो दैट वाज कंडक्शन। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन, द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ गैस और अ लिक्विड। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, assume that I take a water tank. Okay, I take a water tank and I put two metal balls in there. एक मेटल बॉल बहुत हाई टेम्परेचर पे, समझो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा मेटल बॉल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होने वाला है, जो सबसे ज्यादा गर्म मेटल बॉल है पानी के अंदर, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट गिविंग आउट हीट, राइट। सो जो 100 डिग्री सेल्सियस में है, उसमें से हीट एनर्जी पानी में चली जाएगी, पानी में से ये जो रूम टेम्परेचर पे बॉल रखा है मेटल का, वो एब्जॉर्ब करने शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे हीट कैसे फ्लो हुई है, इट हैज फ्लोड फ्रॉम द वाटर। ये दोनों बॉल्स को मैंने वाटर टैंक में रखा था, पानी में से वो हीट फ्लो हुआ है, राइट। सो दैट आई विल कॉल एज कन्वेक्शन। अनदर रियल लाइफ एग्जांपल इज होली। होली जब जलाते हम, उस व्हेन वी लिट अप और व्हेन वी फायर अप द ग्रास, ड्राई ग्रास, और तुम उसके पास में जाओगे, यू विल फील द हीट, राइट। तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है तुम्हारे बॉडी तक, इट इज ट्रांसफरिंग थ्रू द एयर। हवे में से वो हीट तुम्हारे बॉडी में फ्लो हो रही है। सो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। सो गैस या लिक्विड में से जब हीट फ्लो होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वेक्शन, राइट। Last is radiation. So what is radiation? It's the flow of heat in the form of electromagnetic radiation. So what is electromagnetic radiation? It is nothing but light. Light is an electromagnetic wave. We have seen that, right, in our previous grade. Light is an electromagnetic wave. So electromagnetic radiation मतलब light. Okay. So light से भी heat transfer हो सकता है। Example sun. सन एंड अर्थ के बीच में, सन आई मीन अर्थ को हीट कहां से मिलता है, सन से, राइट। सन एंड अर्थ के बीच में पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ना ही कोई सब्सटेंस है, वैक्यूम है, राइट। सो वैक्यूम में से भी कैसे ट्रांसफर हो रहा है हीट सन से लेके अर्थ तक, इट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो वैक्यूम से भी पास हो सकता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट में से जब हीट ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। ओके, next they have given us an activity to try. It's a very important activity, okay, and इसी में से हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। So I'll read out the activity, I'll explain you what the activity is. First, take a few pieces of ice in a glass beaker. एक ग्लास का बीकर ले लो, उसमें आइस के क्यूब्स डाल दो। Insert a bulb of thermometer. Insert the bulb of thermometer. Bulb of thermometer यानी थर्मामीटर जहां से मेजर करता है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है, राइट। सो नीचे वाले पार्ट में जनरली वो मेजर करते हैं, एंड ऊपर वाले पार्ट में वो इंडिकेट करता है कितना टेम्परेचर है। सो इंसर्ट द बल्ब ऑफ थर्मामीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। थर्मामीटर को आइस में डाल दो, जो हमने ग्लास बीकर में लिया था, एंड उसमें कितना टेम्परेचर है वो मेजर करना शुरू करो। ओके, नेक्स्ट, पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। तो ये जो बीकर है जिसमें आइस लिया था, उसको एक स्टैंड पे रख दो, यहाँ पे डार्क ग्रे कलर में स्टैंड दिख रहा है, और उसके नीचे बर्नर रख दो एंड स्टार्ट हीटिंग इट। ओके, record the temperature using thermometer after every minute. अभी when you're burning the beaker, after every 1 minute, हर 1 मिनट में तुम्हें क्या टेम्परेचर है वो नोट करना है। ओके, as the ice is heated, it starts melting. Stir the mixture of ice and water. जैसे तुम हीट करना शुरू करोगे, that ice will convert into water. ओके, और जैसे ही वो होगा तुम्हें मिक्स करते रहना है। स्टर यानी मिक्स। कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। आइस मेल्ट होने के बाद भी तुम्हें कंटिन्यू करना है,
एक्सपेरिमेंट को बीच में रोकना नहीं है. ओके, हर 1 मिनट में तुम्हें चेक करना है कितना टेम्परेचर है. एंड फाइनली ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. ओके, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लो और उसको प्लॉट करो पॉइंट्स को कि पहले मिनट में क्या टेम्परेचर था, सेकंड मिनट में क्या टेम्परेचर था, थर्ड मिनट में क्या टेम्परेचर था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, आई एम गोइंग टू क्विकली रिवाइज व्हाट वी आर डूइंग. एक ग्लास का बीकर ले लो, उसके अंदर आइस ले लो, आइस के अंदर थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करो. फिर आइस बीकर को एक स्टैंड पे रख दो, स्टैंड के नीचे बर्नर रख दो और उसको हीट करना शुरू करो. जैसे ही तुम हीट करना शुरू करोगे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उसको मिक्स करते रहना है और हर 1 मिनट में चेक करना है टेम्परेचर क्या है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, क्लियर है? नाउ लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ. So again, I told you, right, this is the temperature versus time graph, which is the most important part of today's learning session. Okay, so you have to pay complete attention when I'm describing it. Ideally, we should have done this experiment in person, right? But since we are unable to do that, pay close attention when I'm telling you what is happening in the experiment. Okay, so first I've drawn x-axis and y-axis. X-axis पे minutes लिए मैंने 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minutes, so on and so forth. एंड वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो पहले हमने ग्लास बीकर में आइस लिया था. आइस विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, सो हियर विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट. लेट मी टेक दैट बैक. हियर विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी टाइमर शुरू नहीं किया. जैसे ही बर्नर को तुमने ऑन कर लिया टाइमर शुरू कर दोगे. ओके, जैसे ही बर्नर में तुमने आग लगा दी, यू लिट फायर इन द बर्नर, you will start your clock. Okay, you start your clock and then 1 मिनट के बाद तुम चेक करोगे क्या टेम्परेचर है. So what you will notice is ice will start melting but temperature increase नहीं होगा. So 0 डिग्री पे ही रहेगा. So first point will be here. 1 मिनट हो गया, आइस थोड़ा सा पानी में कन्वर्ट हो चुका है बट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है. So 1 and 0, राइट? नेक्स्ट एक और मिनट हो गया, एक और मिनट के बाद भी थोड़ा सा और आइस पानी में कन्वर्ट हो चुका है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ. यू आर हीटिंग इट फ्रॉम द बर्नर बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ. सो सेम लाइन पे तुम्हारा सेकेंड पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस और थोड़ा सा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया. थर्ड मिनट में भी वही होगा, फोर्थ मिनट में भी वही होगा. क्या होगा? आइस धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो पहले 4 मिनट ऐसे ही चलेगा. देन till 4 minutes all the ice is converted into water. पूरा का पूरा जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है. Now only water is left in the beaker. But हमें अभी एक्सपेरिमेंट रोकना नहीं. We have to continue the experiment. So पूरा आइस पानी बन चुका है, अभी भी बर्नर नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा है. What is going to start happening is now temperature will start rising. So 5th मिनट पे समझो 5 डिग्रीज हो गया, 6th मिनट में समझो 10 डिग्रीज हो गया, 7th 8th 9th मिनट पे धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, और थोड़ा हीट करो, वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, और हीट करो टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, और हीट करो टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, और हीट करो टेम्परेचर और इंक्रीज होगा. अब तक हमारे बीकर में पानी था और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एज वी आर गिविंग मोर एंड मोर हीट. ये कब तक इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, ये लास्ट पॉइंट है जब तक इंक्रीज होगा. 100 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज होगा. अब 100 डिग्री सेल्सियस is the point where water will start evaporating. Okay, so फिर वापस टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. थोड़ा सा पानी वेपर बन गया बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, और थोड़ा पानी वेपर बन गया बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, सेम टेम्परेचर. सिमिलरली और थोड़ा तुम इंक्रीज करोगे, और थोड़ा टाइम तुम रुकोगे और पानी स्टीम में बन जाएगा, वेपर बन जाएगा बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. ओके, and this is how it will look like. Okay, so if you see here I can see 3 straight lines. Okay, यहाँ पे एक straight line दिख रहा है मुझे, फिर यहाँ पे एक straight line दिख रहा है. exactly straight नहीं है वो but somewhat straight है, like एकदम perfect straight line नहीं दिख रहा है but straight line के काफी करीब है. Similarly यहाँ पे भी काफी straight line के करीब है और ये कहाँ से आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है straight line. Okay, so we have done the experiment और हम लोग ने प्लॉट भी कर लिया. So now we can plot a line. यहाँ पे डॉट्स बनाने के बजाय हम लाइन बना सकते हैं. Okay, just to make it easier for us to study this graph. So hence we will make this graph. Okay, and we will name points. ये पॉइंट को हम A बोल देंगे, इस पॉइंट को B बोलेंगे,
इस पॉइंट को सी बोलेंगे, इस पॉइंट को डी बोलेंगे. सो आई हैव ड्रॉन द फर्स्ट लाइन हियर, सेकंड लाइन हियर एंड थर्ड लाइन हियर. ये फोर्थ लाइन कहां से आई? दिस फोर्थ लाइन हम लोग ने बस ऐसी चेक करने के लिए किया है कि अगर इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये कौन से टेम्परेचर पे टच करेगा वाई एक्सिस को, तो 100 डिग्री पे टच करेगा. वो चेक करने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है. ओके, ये लाइन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं मिला. एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें ए टू बी टू सी और सी टू डी मिला है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? आइस प्लस वाटर. यहाँ पे क्या होता है? ए टू बी, आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा था और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था. यहाँ पे तो ए बी में आइस भी है थोड़ा, वाटर भी है थोड़ा, सॉलिड प्लस लिक्विड. नेक्स्ट बी पॉइंट पे सारा का सारा आइस पानी बन चुका था, राइट? सो बी से लेके सी तक पूरा का पूरा सिर्फ पानी है, ओनली लिक्विड. ओके, एंड देन फ्रॉम सी ऑनवर्ड्स द लिक्विड वाटर स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू वेपर. सो राइट, यहाँ पे सी टू डी, यहाँ पे वाटर भी था और वेपर भी था. ओके, सो पानी भी था लिक्विड फॉर्म में और वेपर भी था गैसियस स्टेट में. तो सी से लेके डी तक लिक्विड भी था, गैसियस भी था. ओके, सो ए टू बी सॉलिड प्लस लिक्विड था, बी टू सी सिर्फ लिक्विड था एंड सी टू डी सिर्फ नहीं, सी टू डी लिक्विड प्लस गैस दोनों साथ में था. Okay, so that's what we observe when we do this experiment. If you have a thermometer at home, you can also do this experiment. Okay, okay. So now we're going to look at observations. क्या क्या observations है? So first observation, the temperature of the mixture remains 0 degree Celsius till the ice melts completely. तो ये कौन से पोर्शन की बात हो रही है? ये इस पोर्शन की बात हो रही है, ए टू बी. जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था, इंक्रीज नहीं हुआ. ओके, सेकेंड, if we continue heating even after conversion of all ice into water, temperature of water starts rising and reaches 100 degree Celsius. तो एक बार पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो गया और फिर भी हम लोग ने कंटिन्यू किया हीट करना, तो ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा. और कब तक बढ़ते जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक बढ़ते जाएगा. थर्ड, एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम. तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, पूरा का पूरा पानी अब धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम. यहाँ पे अभी वापस टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा. जब तक पूरा का पूरा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो यहाँ पे ए बी जो लाइन है, इस लाइन में क्या हो रहा है? वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे. नेक्स्ट, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स at 0 degree Celsius and converts into water at this constant temperature. तो जब तुम आइस को लेते हो और उसको हीट करना शुरू करते हो, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा और पूरा मेल्ट होने के बाद ही वो टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएगा. तो जो मेल्टिंग प्रोसेस है आइस का, वो सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा. नेक्स्ट, ice absorbs heat energy during this transition and the absorption of energy continues till all the ice converts into water. तो क्या हो रहा है? We are talking about this only. Okay, AB के बारे में बात हो रहा है. So 0 to 4 minutes में क्या हो रहा है? 0 to 4 minutes में, give me a minute, yeah, 0 to 4 minutes में तुम हीट दे रहे हो. हीट कहाँ पे जा रहा है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? हीट किस में यूज हो रहा है? ये जो आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, राइट? सो हीट से दो चीजें हो सकती है. हीट से या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर फेस चेंज हो सकता है. सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है या फिर लिक्विड टू गैस हो सकता है. दोनों में से कोई तो एक ही चीज एक बार में होगी. दोनों एक साथ नहीं होगा कि सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा है हीट एनर्जी की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है. दोनों साथ में नहीं होगा. दोनों में से कोई तो एक चीज एक टाइम पे होगी. सो स्टार्टिंग में पहले 4 मिनट में क्या हो रहा है कि ये जो हीट एनर्जी मिल रही है आइस को, उस एनर्जी से क्या हो रहा है? उस जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. ओके, we go ahead. कहाँ पे थे हम? Yeah, वही है. So the ice absorbs heat energy during this transition and absorption of energy continues till ice converts into water. Next, the temperature remains constant during this transition. जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर
इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यही मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन। क्या है मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन? constant temperature at which ice converts into water is called melting point of ice। वो सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें आइस पानी में चेंज हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। हमें डेफिनेशन पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट का। वी ऑल न्यू मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बट उसका डेफिनेशन नहीं पता था। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, मोर ऑब्जर्वेशंस। The next observation is, thus during transition of solid phase to liquid the object absorbs heat energy but the temperature does not increase। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, सो आई मीन अगेन लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, this heat energy is utilized for weakening the bonds between atoms or molecules in the solid to transform it into liquid। so solid की होता है क्योंकि वो जो बॉन्ड होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी स्ट्रांग होती है। so जब बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे तब वो लिक्विड हो जाएगा, राइट। so जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तब जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट किस में यूज हो रही है? वो जो बॉन्ड्स है स्ट्रांग सॉलिड के उसको वीक करने में यूज हो रही है। एक बार बॉन्ड्स वीक हो गए तो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, राइट। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called as latent heat of fusion। Okay, तो हमने पहले क्या पढ़ा था पिछले स्लाइड पे? We studied melting point of ice, right? Melting point of ice पढ़ा था क्या था? So this is a temperature। So अभी टेम्परेचर को हमने समझ लिया, टेम्परेचर को एक टर्म दे दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम हीट को टर्म दे रहे, हीट को डिफाइन कर रहा है। ओके, सो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, उसको कौन सा हीट बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सा कौन सा हीट बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो दैट्स योर सेकंड डेफिनेशन फॉर द डे। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन देख लिया, लेटेंट हीट का डेफिनेशन देख लिया। जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called as specific latent heat of fusion। तो पिछले स्लाइड में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड ऐड हो गया? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या फर्क पड़ा? बस दो न्यू वर्ड्स ऐड हो गए। विच टू न्यू वर्ड्स? यूनिट मास। यूनिट मतलब एक मास, तो ये 1 ग्राम हो सकता है या फिर 1 kg हो सकता है। या तो 1 ग्राम के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या फिर 1 kg के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन मोर लास्ट टाइम। ओके, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड 1 ग्राम या फिर 1 किलो के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, कितना भी मास होगा उसको सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सिर्फ एक यूनिट मास होगा, यूनिट यानी 1 ग्राम या फिर 1 kg, उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सो जब भी यूनिट मास के लिए हम बात करते हैं तब वो स्पेसिफिक वर्ड ऐड हो जाता है। जब भी यूनिट मास की बात करेंगे स्पेसिफिक ये वर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, किसी भी डेफिनेशन के सामने। Next, more observations. Once all ice is transformed into water, the temperature of water starts rising. It increases up to 100 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट नंबर बी पे सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगा? बी से लेके सी तक टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गोइंग टू इंक्रीज। पानी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने वाला है। कब, कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, line BC in the graph represent the rise in temperature of water from 0 to 100 degree Celsius। line BC में वो दिख रहा है हमें। Okay, thereafter even though heat energy is supplied to water its temperature does not rise। Okay, C point के बाद तुम और कितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। ओके, 100 डिग्री के बाद एक बार 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया पानी का, उसके बाद कितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। The constant, okay, नहीं, give me a minute.
The heat energy is absorbed by water at this temperature and is used to break the bonds between molecules of liquid and convert the liquid into gaseous state. तो पॉइंट सी में जो कुछ भी हीट मिल रहा है वो किसके लिए यूज हो रही है? वो जो लिक्विड है, लिक्विड के बॉन्ड्स को और वीक बना देगा, लिक्विड के और बॉन्ड्स को वीक बना के उसको और थोड़ा दूर दूर करके उसका लिक्विड का गैस बना देंगे. ओके, आई वांट टू रिपीट दैट वन मोर टाइम. पॉइंट नंबर सी में 100 से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला, कितना भी हीट दे दो. तो हीट किसके लिए यूज हो रहा है? वो जो पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स है उसको और वीक बनाएगा और उसको और वीक बना के लिक्विड से गैस बना देगा. ओके, these were the observations on this particular slide. Okay, next. Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by liquid but its temperature does not rise. So यहाँ पे जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. ओके, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. ओके, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. अगेन वी न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्या है बट अभी उसका डेफिनेशन पता चल गया. Last observation, I think, the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid to gas is called as latent heat of vaporization. Okay, यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और जो हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड को गैस बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब लिक्विड से गैस हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, इट इज वेपराइजेशन. सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन. लेटेंट हीट क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और लिक्विड से गैस बन रहा है. ओके, सिमिलरली अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का अगर ये डेफिनेशन है, सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या डेफिनेशन होगा? स्पेसिफिक के लिए यानी 1 ग्राम के लिए या फिर 1 किलोग्राम के लिए. ओके, यूनिट मास के लिए. सो वो ऐड कर देंगे उसके डेफिनेशन में. सी, यूनिट मास ये वर्ड ऐड कर दिए. So the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass, 1 ग्राम या फिर 1 किलो के लिए, यूनिट यानी 1, of a liquid to convert into gaseous phase is called as specific latent heat of vaporization. सेम डेफिनेशन है latent heat of vaporization जैसा, बस कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? by unit mass. 1 किलोग्राम के लिए या फिर 1 ग्राम के लिए कितना हीट देना पड़ेगा वो, अगर ये by unit mass ऐड कर दिया डेफिनेशन में तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के पहले स्पेसिफिक ये वर्ड ऐड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ये तो हमने पानी के लिए किया, राइट? हमने आइस लिया, आइस वाटर हो गया, वाटर वाटर वेपर बन गया. ये हमने एक्सपेरिमेंट आइस के लिए किया या फिर पानी के लिए किया. बट अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. ओके, द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लेटेंट हीट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर से भी चेंज हो सकता है. सो अगर तुम माउंटेन्स पे जाओगे, ओके, और माउंटेन्स पे पानी को बॉईल करोगे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा, वो अलग टेम्परेचर पे बॉईल होगा. ओके, एंड अगेन यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट द नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ हिल स्टेशन या फिर एनी प्लेस which has considerably more height than Mumbai. यू कैन राइट आउट, पानी को बॉईल करो वहां पे माथेरन महाबलेश्वर पे और उसका टेम्परेचर नोट करो, 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा. तो प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ये सब चेंज होता है और हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है वो. ओके, सो दिस इज अ टेबल विच विल गिव यू दोज वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, पानी के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो स्पेसिफिक बोला यानी 1 kg के लिए. देखो, एंड एनर्जी इज इन जूल्स, राइट? तो यहाँ पे किलोग्राम्स पर जूल एंड कैलोरीज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी के 2 यूनिट्स है, जूल्स एंड कैलोरीज. सो किलो जूल्स पर किलोग्राम में यहाँ पे दिया एंड कैलोरी पर ग्राम पे इस कॉलम में दिया. ओके, सो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी 1 किलोग्राम के लिए, या फिर यहाँ देखो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय केजी है, या फिर 1 ग्राम के लिए इसलिए डिवाइड बाय ग्राम है. तो ये सब अलग अलग वैल्यूज दे दिए. ओके, यू कैन गो थ्रू दैट एंड सी किसका ज्यादा है किसका कम है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. Oh no, we have some user brain power type of questions remaining. I forgot.
Very simple questions, very small questions. Okay. So is the concept of latent heat applicable during transformation of gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to solid phase? जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे तब सेम कांस्टेंट टेम्परेचर था, उसको लेटेंट हीट बोला. सिमिलरली जब लिक्विड से गैस जा रहे थे तभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर था. ओके, और उसको उसमें लेटेंट हीट हमने बोला. अभी उल्टा कर रहे हैं, समझो गैस से लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, फिर भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा क्या? फिर भी सेम टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड बनेगा क्या? सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस से लिक्विड बनेगा क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, where does the latent heat go during these transformation? So अगर गैस से लेके लिक्विड बन रहा है, सॉरी हमने अभी क्या पढ़ा, लिक्विड से गैस बन रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा था. तो अभी जब उल्टा हो गया, गैस से लिक्विड बन रहा है, तब क्या होगा हीट का, कहां पे जाएगा? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन. ओके, so these are simple questions. If you have understood everything till now, you should be able to answer these two questions very easily. Okay, one line के answers है. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and write the answers by yourself. Okay, खुद से आंसर लिखो, it will increase your confidence if you write it correctly. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and are ready with the answers. Okay, let us discuss the answers now. So first question है, जब लिक्विड से सॉरी जब गैस से लिक्विड बन रहा है और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तभी भी लेटेंट हीट होता है क्या? The answer is yes. वेरी सिंपल आंसर. आंसर इज यस. तो जब गैस से लिक्विड हो रहा है तभी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तभी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे. ओके, सो द आंसर इज यस. नेक्स्ट, वो लेटेंट हीट कहां पे जाएगा? जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा था तब वो सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा था हीट को. जब लिक्विड से गैस हो रहा था, लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा था हीट को, राइट? जब उल्टा हो रहा है, देन the latent heat during these transformation will be given off, released in the surroundings में रिलीज हो जाएगा. सो गैस जब लिक्विड बन रहा है तब उसका जो लेटेंट हीट है वो रिलीज हो जाएगा सराउंडिंग्स में, आजू बाजू के एयर में रिलीज हो जाएगा. सिमिलरली जब लिक्विड सॉलिड में बन रहा है तो लेटेंट हीट विल बी गिवन ऑफ, रिलीज होगा. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन थे. जब नीचे से ऊपर जा रहे थे, सेम कंसेप्ट ऊपर से नीचे होगा. नीचे से जब ऊपर जा रहे थे ग्राफ में तब हीट एब्जॉर्ब होगी, ऊपर से जब नीचे आओगे ग्राफ में तब हीट विल बी रिलीज्ड. ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो दैट्स योर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ वी आर डन फॉर द डे. ओके, just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you tell me the difference between heat and temperature? If yes, then you accomplished the first objective. Can you tell me the definition of latent heat? Can you tell me the definition of specific latent heat of fusion, specific latent heat of vaporization? If yes, the second objective you have achieved. Can you explain me the entire activity and the temperature versus time graph? If you can explain me, मैंने जैसे explain किया तुम्हें with all the observations, then you have achieved the third objective for the day. And hence I told you the third objective is the most important objective for today's learning session. तो ये तुम्हें एक्टिविटी पूरी समझ में आ गई तो तुम्हें फर्स्ट एंड सेकंड काफी इजीली समझ जाएगा कि लेटेंट हीट क्या होता है, वेपराइजेशन का क्या होता है, फ्यूजन का क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक्टिविटी अच्छे से समझ में आनी चाहिए और वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आना चाहिए. देन यू विल बी गुड फॉर answering questions on these concepts. Okay, so that is it for this learning session. I hope you enjoyed, I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.